اللہ نہیں فرماتا کہ میرے نبی پہ کوئی یہ بولے کہ غار ہیرا میں جا رہا تھا، اس وقت نبی کو میں نے اٹھایا، میرے نبی کو بھوک پیاس لگی تھی تو پانی بھرنے کے لیے میں پہاڑ سے اترا چڑھا، یہ نہ بولے۔ ارے تو چڑھا اترا تو یہ بھی دیکھ کہ اللہ نے تجھ میں کتنی رحمت دی کہ نبی کا بوجھ بھی اٹھایا اور تجھے علم سکینہ بھی عطا کرا، چہرہ انور کی طرح بدل دیا۔ اللہ نے وہیں اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کا بدلہ اللہ سب سے پہلے دنیا میں دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور عمل، علم جو تم میں کرتے ہیں، عبادت ہے، بندگی، نماز، خیرات، زکات وغیرہ وغیرہ، اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے قبر میں اور قیامت میں دوں گا۔ عمل کا، علم کا بدلہ، روزہ، نماز، زکات، فطرت وغیرہ وغیرہ جو بھی، اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، قبروں میں کام آئے گا، قیامت کے دن کام آئے گا۔ لیکن فرماتا ہے نبی سے محبت کر لی یقیناً دنیا میں بھی کام آئے گا اور تینوں جگہ کام آئے گا۔ نبی کی محبت وہ ہے جو دنیا میں کامیاب کرتی ہے۔ تو دنیا میں جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو قبر سے کوئی سیکھوا ملا نہیں دیتا، کوئی تکلیف نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ قبر جب دنیا میں نبی کا صلہ اس کو ملنا چالو ہو جاتا ہے، دین محمد کو پھیلانا چالو کر دیتا ہے اور نبی اس سے جب دین پھیلاتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں تو قبر میں جا ہی نبی فرماتے ہیں یہ فرشتے سے سوال جواب مت کرنا، میں جانتا ہوں کہ یہ میرا دین پھیلاتا تھا، میرا دین پھیلاتا تھا، اور جو دین پھیلاتا ہے اس کے لیے سوال جواب نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب عرش میدان آتا ہے تو فرماتے ہیں لوگوں 500 سال پہلے جنت میں وہ بندے جائیں گے جو میرا دین پھیلاتے تھے، چاہے وہ عورتوں میں تھی یا آدمیوں میں تھے یا بچہ تھا یا بوڑھا تھا، وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور میری کملی کے نیچے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کے نیچے ہوگا۔ کب؟ جب دین مصطفیٰ پھیلایا جائے۔ جتنا تم کو میرے کو آتا ہو ہم گھر میں بیان کریں، باہر بیان کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، جو دین پھیلانا سیکھ جاتا ہے وہ یقیناً دنیا کے تمام سوالوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے اعمال نامے کو، پورے اعمال نامے کو بجھا دیا جاتا ہے، اچھائی اور برائی سب بجھا دی جاتی ہے، اس اعمال نامے کو ایک اکشر میں بدل دیا جاتا ہے۔ حب علی کو کیا بول دیا جاتا ہے؟ حب علی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ حب علی ہے جو دین علی کو پھیلانے کا حکم دیا تھا، آج وہ کام نبی کریم کی امت کر رہی ہے۔ جو بندہ بندی دین پھیلاتا ہے اس کے اعمال نامے کا نام حب علی ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور نیکیوں کو نور میں بدل دیتا ہے۔ جب نور والا ہو جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے جھنڈے کے نیچے ہے اور جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جنم پہ جب پل ستار سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو پل ستار کی آگ 45 کلو 80 ہوگی میٹر، جنم کی آگ زمین سے 45 کلومیٹر 80 ہوگی، یعنی مان لو 10 مالے سے 80 اتنی آگ 80 ہوگی۔ لیکن جب دین پھیلانے والا، حق پہ چلنے والا جب پولیس تار سے جب گزرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آگ اس طرح بجھ جاتی ہے جیسے پلک جھپکتی ہے، وہ آگ بجھ جاتی ہے اور آگ فریاد کرتی ہے، اے الہی پروردگار اس بندے کو کہ پل ستار سے جلدی گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھ کو بھی ٹھنڈ میں رہنا پڑے، سرد ہو جائے گی، گرم نہ رہے گی۔ تو پل ستار سے وہ بندے کو اللہ کیسا گزارتا ہے، پلک جھپکتی ہے نہ پار کر دیتا ہے، پلک جھپکتے پار کر بیٹھتا ہے۔ بھائی کب کر بیٹھے گا؟ جب ابو بکر صدیق جیسی محبت لے کر آئے گا، ابو بکر صدیق جیسی محبت لائے گا، مولا علی مشکل خدا قدیم کریم کے بتائے دین میں چلے گا، اپنے پیر و مرشد شیخ کے بتائے راستے میں چلتا بندہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بند کر دیتا۔ بھائی گناہ بند کرتا، ہاں یہ منکر اور نکیر ہے، یہ نکیر کو آرام مل جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ منکر کو آرام مل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب بندہ دین پھیلانا چالو کرتا ہے اور نبی کا غلام بننے کی کوشش کرتا ہے، دین کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے دنیا والے فرشتوں جاؤ اس کے آس پاس کوئی گنہگار کو اور گناہ کو منڈلانے بن دینا، اس سے گناہ نہیں رک جاتے ہیں، گنہگاروں کو آنا ہی بند کروا دیتا ہے، صرف وہاں منکر ہوتا ہے، نیکی نیکی لکھتا رہتا ہے، گنہگار کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں۔
सिर्फ वो दीन के खातिर निकले। बड़ी सरकार सल्लम की शान है, ये अबू बकर सिद्दीक का इश्क है। बस मैं ही चाहता हूँ कि अल्लाह से तुम्हारे पास जो भी दिया करा है वो आगे फैलाओ। कुछ नहीं होता, कोई हमारा मुरीद भाई आज नहीं आ सका है, वो तुम्हारे घर आता, तुम उसको मिलते हो तो उसको बताओ कि भाई जुमा के तुम नहीं आ सके, हमने ये चीज़ सुनी है, आप तक पहुँचाओ, एक दूसरे के पहुँचाओ। कोई हमारा पड़ोसी अच्छा भला है या बुरा है, उसके पास जाके बैठो, सगा समझे जाके बैठो। जब हम दुनिया की फालतू बात कर सकते हैं तो क्यों ना अल्लाह उसके रसूल की 1 कलाक नहीं 10 मिनट बात करें। हो सकता है तुम्हारी 10 मिनट अल्लाह को पसंद आ जाए, आज वो 10 मिनट का लिखान करते करते अल्लाह तुम्हारे 1-1.5 कलाक तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, वो तो जल्ले जलाल है और रहमान रहीम है, वो तौफीक अता करके इसी करे। पर एक मसला अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ऐसे होते हैं। इसी तरह एक तबे ताबीनों के अंदर से आशिक, जिसका मैंने शायद अभी रात को मैंने प्रोग्राम किया सालेह अलैहिस्सलाम का। तो सालेह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला औलाद देती है, जिसका नाम तुम और मैं सब जानते हैं, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। उस सरकार का औदा अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बढ़ा रखा है, उनके बारे में कोई नहीं जान सकता, सिर्फ वही बंदा जान सकता है जो उनके शेखों की गिनती में है। जो शेखों की गिनती में किताबों से चीज कुछ हटा चुकी है, कुछ चीज जिस तरह दुनिया में हर इंसान सही नहीं है, इस तरह हर किताब भी सही नहीं, हर कुरान का मायना भी सही नहीं है। कुरान की आयत होगी बराबर, लेकिन लिखने वाले कुछ आलिमों ने उसको गलत कर रखा है। इसी तरह सरकार गोस्ता आजम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आने के पहले अपनी माँ के पेट के अंदर कमोबे 7 महीने के थे। कितने महीने? 7 महीने। 7 महीने की उम्र पेट के अंदर है सैयदना गोस्ता आजम अलैहिस्सलाम की। जब आपकी माँ फातिमा इबादत के अंदर बैठती है तो अल्लाह तबारक व तआला अजमाइश के लिए इस बंदी के लिए एक साहिल को भेजता है। फकीर आके सदा लगाता है कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब नहीं आता, फिर फरमाती अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कुछ खाना दे दे। दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा करती सलाम तो सलाम का जवाब नहीं आता, क्योंकि उसने सोचा कोई है, हाँ थी पर नमाज में। जब दूसरी मर्तबा सलाम करते हैं तो जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुकिए कुछ देर, खाली नहीं जाओगे। सुभान अल्लाह, क्या फरमा दिया? रुकिए कुछ देर, खाली यहाँ से नहीं जाओगे, कुछ देर, बस कुछ देर खड़ा रहा भाई। आपने नमाज पूरी करी, नमाज पूरी करने के बाद आपने देखा कि कुछ कोई खड़ा है, आपने बोला जी, तो फरमाया कि मैं साहिल हूँ, मंगने खड़ा हूँ। बोले बाबा आपने सलाम करा, मैं जवाब देख ना सकी इसके लिए कि मैं नमाज में थी। नहीं, बोले बेटी तुमने तो सलाम का जवाब दूसरी मर्तबा मुझे दे दिया। क्या फरमाया? दूसरी मर्तबा जब मैंने सलाम किया तो दे दिया। तो अगर दूसरी मर्तबा तूने बेटी सलाम का जवाब दिया है तो पहली मर्तबा सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? तो फरमाती है ना पहले मैंने सलाम का जवाब दिया था, न दूसरी मर्तबा सलाम करा उसका जवाब दिया था। नहीं बेटी दूसरी मर्तबा जवाब दिया था, वो मैं नहीं थी साहिल, वो देने वाले मेरी औलाद शेख गौस अब्दुल कादिर जिलानी था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी था जो माँ के पेट में से सलाम का जवाब दे रहा है। तो कुछ आलिमों ने हमको बोला कि रफीक भाई ऐसा नहीं हो सकता, माँ के पेट में कोई सलाम का जवाब दे नहीं सकता। तो मिला बरहक वो कान तेरे नहीं जो तू सुन सके, वो कान तेरे नहीं जो सुन सके। गोश्त की आवाज तो वही सुन सकता है जो गोश्त और नबी का चाहने वाला होता है। तो जो साहिल खड़ा था वो गोश्त और नबी का चाहने वाला था, इसके लिए वो साहिल नहीं था, वो तो खिजर अलैहिस्सलाम खड़े थे। और जो पेट में पल रहा था वो बच्चा जब 17 पारे माँ के पेट में पल सकता है तो क्या सलाम का जवाब कैसे दे सकता है? ये सैयदना गोस्ता आजम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मामला है।
क्या मामला है? पैदाइश का मामला है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की जब आमद होती है, आमद होने के बाद आपकी उम्र कमोबेश 6 साल की, कितने साल की? 6 साल की आपकी उम्र होती है। 6 साल की उम्र के अंदर आप अपनी माँ के पास से दरस लेते, कुरान का दरस लेते, आपके नाना से लेते। आपके वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। क्या हो गए थे? रुखसत हो चुके था। आप दुनिया से रुखसत हो चुके। गौसा आजम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ला मेरे नाना का मैं हेल्प करूं, कुछ काम करूं। जब काम करने के लिए आप खेती बाड़ी के अंदर लगे, तो खेती बाड़ी के अंदर आपने काफी देर तक काम किया, काम करते रहे, करते करते आपको काफी टाइम होने लग गया, यहाँ तक है कि आपकी उम्र 18 साल की हो गई। कितने साल की? 18 साल की उम्र आपकी कमोबेश हुई, तो आपने देखा कि नाना ज़ईफ हो गए, अब हल चला नहीं सकते। नाना हल चलाने में तकलीफ होती है, तो आप हल की जगह पर आप खड़े हो गए। आप जैसे खड़े हो गए, आपने दोनों जनावरों को बोला कि चलो हल खींचो, मैं हल जोतता हूँ। तो जैसे आपने हल के पास खड़े हुए, उन जनावरों को धक्का लगाया, जनावर दोनों खड़े रह गए और फरमाने लगे सलात व सलाम अलैका या गौसे आजम। गौसे आजम को सलाम किया, फरमाए गौसे आजम आप दुनिया में इसके लिए नहीं आए हो। बस इतना सुनना था कि आप दौड़कर सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास पहुंचे। क्या पहुंचते हैं? अपनी माँ के पास पहुंचते हैं। और पहुंचते जब माँ जीती, बेटा इसकी भाग के क्यों आया? देखा कि माँ काम करी, माँ को भी बोलूं तो मानेगी कि नहीं मानेगी। आपने माँ को भी नहीं बोला, छत पर चढ़ गए। क्या चढ़ गए? छत पर चढ़ गए। और आप सोचते रहे एक परवरदिगार, उस जनावर ने मुझसे बात करी, वो भैंस बैल ने मुझसे बात करी कि मैं दुनिया में इसके लिए नहीं आया हूँ, तो इलाही परवरदिगार मैं किसके लिए आया हूँ? कुरान तो सब पढ़ते हैं, नमाज तो सब पढ़ते हैं, ज़कात खैरात सब करते हैं, तो ये लोग दुनिया में आए तो मैं भी तो करता, तो मैं भी तो दुनिया में इसके लिए आया हूँ। फरमाया नहीं अब्दुल कादिर जिलानी, सब पढ़ते हैं, वो नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। जिस तरह बेल तुझसे बात करता है, जिलानी इलाके में रहने के बाद आपके पास एक रोशनी निकलती है और अरफात का मैदान सामने नजर आता है। क्या आता है? बरज़ा के रहमत का पहाड़ दिखता है और आप अरफात का मैदान में देखते हैं। कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, ये वही जगह है जहाँ जुर्मत में तेरे नाम का डंका बच जाएगा। 18 साल की उम्र, आपको मालूम नहीं क्यों मिला है, मालूम नहीं क्यों वली। फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल कादिर जिलानी, जो अल्लाह का वली हो जाता है, जो तू तो वली नहीं, तू तो पैदाइशी औलिया है, तो ये बेल तो क्या तुझसे बात करता है? दुनिया की तमाम मखलूकात तुझसे बात करेगी कि जो रब का हो जाता है या रब उसका हो जाता है, न वो नबी का होता है और नबी के उसके हो जाते हैं, तो मखलूकात उससे बात करती है, मखलूकात उसकी गुलाम में हो जाती है। आपने अपनी माँ को दर्द सुनाया कि मैं माँ मेरे साथ ऐसी सी बात हुई है, तेरी उम्र इतनी सारी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता तुझको छोड़कर जाना, लेकिन ये दर्द मुझको ऐसा दिखता है, अब मुझे तू जाने दे, तू कह इजाजत तो मैं जाऊं। आपने बगदाद की शहर के लिए इजाजत ली, माँ ने दिया इजाजत, आपको 40 दिनार अता फरमाए। 40 दिनार के बाद आपकी माँ ने, और 40 दिनार आपके लिबास के अंदर बाएं हाथ के ऊपर, उंगली हाथ के ऊपर एक कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया और एक्स्ट्रा कपड़े के अंदर आपने 40 दिनारों को अंदर रखे। 40 दिनारों को अंदर रखने के बाद आपको रुखसत किया और फरमाया मेरे बेटे को आजम जाओ, आपकी मर्जी के मुताबिक आप वहां जाके पढ़ाई चालू करो, वहां जाकर आपकी मर्जी के मुताबिक पढ़ाई चालू करो। आप पढ़ने के लिए जब निकलते हैं तो माँ कहती बेटा एक दरस खाली तुझे दी, सुभान अल्लाह, और कुछ नहीं। आप सब जानते हो मैं इसको खींचूंगा लेकिन वक्त के मुताबिक काट दूंगा, वहां तो फिर कभी इसको उठाऊंगा वापिस से, लेकिन थोड़ा बहुत पता ही दूं 5 मिनट का। जब गोसा जब निकलने लग गए, अपनी माँ के हाथों पे बोसा दिया, आपकी माँ के पैरों पे बोसा दिया। दुनिया उनको बोसा देती है, वो अपनी माँ को बोसा देता है। यहाँ पे भी गोश्त बता के गए कि मैं औलिया वली खड़ी हूँ, लेकिन मेरी माँ से बढ़कर मैं नहीं हूँ, मेरी माँ से बढ़कर नहीं हूँ। माँ का एहतराम बताया, माँ के हाथ पांव चूमे। उसके बाद सैयदना गौसा आजम अलैहिस्सलाम सवार होने के लिए आप तैयारी करी, गिरो जा रही है, गिरो के साथ हो जाना। अच्छा माँ ने बोला बेटा दुनिया में कुछ भी मुसीबत आ जाए,
कभी झूठ मत बोलना। सब जानते सवाल जब झूठ बोलने का ना बोला, आप सब चले गए, आगे जाके लूटना चालू हुआ, डाकू वगैरह सब आप सब जानते हो, वगैरह सब ढूंढना चालू हुआ। आप एक ही अल्फाज बोलते रहे। वहाँ पे कैसा होता था कि किसी का में झोला होता था या जोड़ा होता था या अच्छे कपड़े पहने होते थे तो उनको लूटते थे। अकेला होता उसको लूटते नहीं थे, वो मानते थे अकेले इंसान के पास क्या मिलेगा। तो जहाँ जोड़े दिखे उन लोग से लूट लिए, देवर उतार लिए, और तो बच्चे ने छोटा बच्चा इसमें क्या होगा जमाने में। तो उसको बोला भाई तू अकेला खड़ा है, क्या तेरे पास भी कुछ है? हाँ जी हाँ है। बोले क्या है? बोले 40 दिनार है। बोलता नहीं, वो बोलो मुस्कुरा, बोले इसके पास 40 दिनार होता है तो बोलता क्यों? सही बात, छुपाना चाहिए, बोलना चाहिए, चलेगी। कुछ देर के बाद राजा उनका सरदार आया, सरदार ने सब कुछ चेक करा, सब लूट लिया भाई, सब लूट लिया, खाना भी ले लिया, सब ले लिया। तो ये छोकरा बोले सरकार, ये छोकरा बोलता है मेरे पास 40 दिनार है। और दिनार किसको बोलते हैं खबर? दिरहम को नहीं, दिनार। दिनार उसको बोलते जो सोने के सिक्के होते, सोने के सिक्के को दिनार बोला जाता था। तो सोने के 40 सिक्के था, और 40 सिक्के बोला जी मेरे पास है। बोला जो है तेरे पास तो बता। आपने अपना लिबास फाड़ा, उसमें से 40 दिनार निकाल के दे दिए। राजा पैसे को नहीं उठाता है, ना किसी को उठाने के लिए, वो अपने हाथों को लेकर अपने चेहरे पे सर पे मारने लग गया। भाई लूटना है लूट ले, सिर पे चेहरे पे क्यों मार लिया? बोले इतना सच्चा बच्चा, बोले इतना सच में कैसे बोल दिया? बोले मेरी माँ ने मुझको कहा। यहाँ गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया कि 17 पारे कुरान के मैंने पढ़े, कुरान में भी लिखा है सवा को भी लक्की सवा को भी दबेगी। ये नहीं फरमाया कि कुरान क्या बोलती है, ये नहीं फरमाया किसी शेख ने बोला है, ये नहीं फरमाया किसी उस्ताद ने बोला है, ये नहीं फरमाया कि नबी ने कुरान में फरमाया, उन्होंने ये फरमाया कि मुझको मेरी माँ ने कहा। जान ले माँ का मतलब क्या है। गोश्त बताता माँ क्या चीज होती है। क्यों भाई, जो इंसान कुरान पढ़ सकता है तो उसको मालूम नहीं हो सकती कि तो अल्लाह का हुक्म है सच बोलना। पर वहाँ नहीं बोला कि कुरान का हुक्म है, वहाँ ये नहीं बोला कि साहबा को हुक्म है, ये नहीं बोला कि नबी ने फरमाया, नहीं फरमा, खाली इतना बोला कि मेरी माँ ने मुझको कहा कि बेटा जो भी कुछ हो सच बोलना। तो मैं सच बोलता हूँ अगर 40 दिनार थे। तो राजा कहने लगा कि हाय लुट गया, मर गया मैं, कि तू अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता, माँ का कहने मान के बारे में सच बोल दिया। मैं रब और नबी का कलमा पढ़ने वाला होकर भी उनकी ना मान सकता। आपने सबका सामान लौटा दिया। क्या कर दिया? सबका सामान लौटा दो और गोश्त का सामान भी दे दो। आज से हम किसी को लूटना बंद कर देंगे और हम हमारी जिंदगी अपनी तरह से जिएंगे। खेल राजा वहां से चले गया। अब खाली बोलो, इसको नहीं खेल सकता, वो टाइम मिल जाएगा। छोटा सा एक सच क्या करता है? एक सच बोला। किसने बोला? सच बोलने वाला तो बहुत सारे थे वहां। सच तो बोला होगा ना, इतनी सारी भीड़ थी तो कोई तो सच बोला होगा या पहले सच बोलता होगा। और कुछ ऐसी जगह आती है शरीयत के अंदर लिखा कि तुम्हारी जान पे बना जाए तो तुम अपने जान बचाने के लिए, मान बचाने के लिए कुछ पल के लिए तुम ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपने इस्तेमाल शरीयत में नहीं करा, क्योंकि शरीयत इजाजत देती थी, माँ ने इजाजत नहीं दी। माँ ने तो यही कहा है तो सच बोलना। माँ ने नहीं कहा कि शरीयत इजाजत देती है, माँ ने कहा तो सच बोलना। यहाँ माँ का कहना मान के सच बोलना, माँ की मोहब्बत माना। माँ कौन है? माँ एकली माँ नहीं थी, माँ के पास भी विलायत थी। माँ भी एक वली थी, माँ भी एक औलिया में से थी, एक नेक बंदों में से है जिसने कभी गैरुल्लाह किसी को देखा नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी बंदी की सच्चाई पे चलने वाला होगा, वो सच्चाई पे चलेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। तेल लुटने वाला आया, उस पर गौसे आजम का सबसे पहला करिश्मा हुआ। खींचने का टाइम नहीं का वो मजा थी कि गौसे आजम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया इतने पैसे ले जा, उसने बोला माँ के कहने पर सच बोलता है, मैं तो अल्लाह के कहने पर सच नहीं बोलता, तो मुझ में गैरत होनी चाहिए, आज से मैं सच बोलूंगा। वो निकल गया। क्या करा? एक लुटे गुंडेदार को गौसे आजम की मुलाकात ने मुसलमान से मोमिन कर दिया। वहाँ जितने लश्कर लूटा चुका था,
غوث اعظم کے جرمٹ میں رہنے سے اللہ نے سب کا جڑ و مال بتا دیا. اللہ فرماتا ہے لا ان اولیاء خوف علیہم ولا یحزنون. میرے نیک بندوں سے محبت کرتے رہو, تمہارا مال و سامان محفوظ رہے گا. میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتے رہو, اٹھتے رہو اور ان کا احترام کرتے رہو. ہو سکے تو ان کی مدد کرنا, وہ ان کی مدد نہیں رب کائنات کی مدد ہے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. اینین پڑھ دیا جو بھی ہم نے کلام درست پڑھا. نبی کے صدقے میں اس مجلس کو تیری